Good morning, praise the Lord, hallelujah. How are you all? Thank you for this new day. We are in the 6th day. Thank you. Thank you, Holy Spirit, being with us. Thank you. Come, let us exalt the name of Jesus. आइए हम 2 मिनट प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें और यीशु मसीह को, अपने उद्धारकर्ता को धन्यवाद दें, उसकी प्रशंसा करें, शुक्रिया अदा करें. कम. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से. महिमा हो यीशु, महिमा हो यीशु, महिमा हो यीशु मेरे हृदय से. महिमा हो यीशु, महिमा हो यीशु, महिमा हो यीशु मेरे हृदय से. ओह प्रशंसा हो यीशु, प्रशंसा हो यीशु, प्रशंसा हो यीशु मेरे हृदय से. प्रशंसा हो यीशु, प्रशंसा हो यीशु, प्रशंसा हो यीशु मेरे हृदय से. ला 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 La ra la ra ri da la ra ri da la shandara la ri da la karam ra ri ba shindoro bo ri da ra ba ri la na shindora ba ri da la karam ra ri da shindora ba ri da la ba Rida la shindara borida rida la karambra rida shindara borido la varida la. जय जयकार हो यीशु, जय जयकार हो यीशु, जय जयकार हो यीशु मेरे हृदय से. जय जयकार हो यीशु, जय जयकार हो यीशु, जय जयकार हो यीशु मेरे हृदय से. हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु मेरे हृदय से. हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु मेरे हृदय से. Oh, thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Son of God. I thank you. Oh, Word of God, I thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you, Jesus. I thank you. Thank you, thank you, thank you, Lord. You are my Lord. You are my King. You are the Son of the Most High God. I worship you, Jesus. I worship you. I bow before you. I kneel down before you. I bow down you. I confess from my mouth that Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my Lord. Thank you, Lord, for your wonderful blessings. Thank you for
teaching office, Lord. Thank you, Lord. Thank you. You are my provider. Oh Lord, thank you. You have given your Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. You fulfill your promise. Thank you, thank you, thank you for your divine nature. Thank you for your divine power. Thank you for your great promises. Thank you for your grace, Lord. Thank you for your grace, Lord. Thank you for your peace and joy. Thank you for the helper, Holy Spirit. I thank you, Lord. Thank you so much. Thank you, Rabalina Hakbare Delina Hakbaro Dolona Hababa. Wonderful Holy Spirit, I thank you. Holy Spirit, I commit this Bible school into your mighty hand. Thank you, you are teaching us, Lord. Thank you for your divine teaching, Lord. Thank you, you are revealing yourself to us day by day. We are knowing you, Holy Spirit, day by day. We are growing into your knowledge, Holy Spirit, day by day. Lord, Holy Spirit, I yielded myself into your hand. I commit myself into your authority, Holy Spirit. Lord, Holy Spirit, I submit my spirit, soul and body into your hand. Oh yes, Holy Spirit, I lend myself to you, Holy Spirit. Capture me, capture every student, Holy Spirit. Capture, you are our custodian, you are our best teacher, my love, my true friend. Thank you, Holy Spirit. Thank you. As I worship you, Lord, send your spirit of worship upon us. Sanctify our tongues, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you. स्वर्ग की ओर तू मेरी आत्मा पर बरसने दे. स्वर्ग की ओर अब मुझ पर बरसा दे. हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर. स्वर्ग की ओर तू मुझ पर बरसा दे. स्वर्ग की ओर तू मेरी आत्मा पर बरसने दे. स्वर्ग की ओर तू मुझ पर बरसा दे. हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर. स्वर्ग की ओर तू मुझ पर बरसा दे. आऊं जब तेरे सम्मुख प्रकाशित मुझे कर. अपने आनंद से तू मुझको भर. हे पवित्र प्रभु मुझ पर हो अति कृपाल. अपने हाथों से मुझको संभाल. स्वर्ग की ओर तू मेरी आत्मा पर बरसने दे. स्वर्ग की ओर मुझ पर बरसा दे. हे पवित्र आत्मा मुझ पर
कब जाकर स्वर्ग की ओसनो मुझ पर बरसा दे। Yes, Holy Spirit. Holy Spirit, shadow us, Lord. हर एक स्टूडेंट पर तू छा जा, छा जा। आज 6th day of School of Holy Spirit पर तू छा जा। We all in one accord commit ourselves into your authority, Holy Spirit. Make us what you want to make us, Lord. What you want to see us, make us, Lord. जो तू हमें बनाना चाहता है हमें बना, हमें और अपने नजदीकी में आने दे। मैं तुझ में और तू मुझ में, हमारा ये रिश्ता बन जाए। डीप क्लोजनेस में हम आ जाएं, कम्युनियन में आ जाएं। तेरा वचन हमारी जिंदगी में पूरा हो, जो कहता है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद में, जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। Let the oneness come, Lord. I am in you, you are in me. The Christ, the hope of glory is in me. Thank you for your oneness, Lord. Thank you, Lord, Holy Spirit. Thank you. Thank you. Once again, I commit this batch into your shadow, Lord. The Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon me. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Now, Father, I pray in Jesus' name, let the office of teaching operate right now. Let the anointing of the teaching office move upon every student. Holy Spirit, thank you, you are our teacher. Thank you, your written word Bible is our textbook. In Jesus' name, amen and amen and amen. ताली बजाएं, प्रभु पवित्र आत्मा का स्वागत करें, अपने टीचर का स्वागत करें। In the name of Jesus, Lord, in Jesus' name, हम ताली बजाकर आपकी महिमा करते हैं। ओ ताली बजाकर आपकी महिमा करते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। आज की टीचिंग का जो टाइटल रखा है, दैट इज होली स्पिरिट इज ए पर्सन। आज हम लोग जानेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा कौन है? हु इज द होली स्पिरिट? आंसर इज होली स्पिरिट इज ए पर्सन। त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, इज ए पर्सन। ही इज गॉड। ही इज पर्सन। पर्सन मीन्स एक व्यक्ति। जब तक आप पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट करेंगे, आपकी आत्मिक उन्नति होती जाएगी। अगर आप किसी प्रगटीकरण की ओर आस लगाकर बैठेंगे, या आप ऐसा सोचेंगे कि कुछ ठंडा ठंडा लगे, कुछ गरम गरम लगे, या चिन्ह चमत्कार दिखें, प्रगटीकरण हो, मैनिफेस्टेशन हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सब पर अपनी दृष्टि हटाएं और पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में देखने की कोशिश करें। अगर आप उसे किसी शक्ति, किसी ताकत, सामर्थ या पावर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं कि कोई शक्ति मुझ पर आएगी, तो ये आपकी गलत अप्रोच है।
The Holy Spirit is an individual personality. जब किसी में कोई पर्सनैलिटी होती है तो वो पर्सनैलिटी उसी में आती है और उसे हम पर्सन कहते हैं। आपका व्यक्तित्व, तो पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है। होली स्पिरिट इज ए पर्सन मोर रियल देन यू एंड आई। Many people refer the Holy Spirit as it. No, don't say it. Use he. Jesus always referred to Holy Spirit as he. We are not going to see the word of God that the Holy Spirit is a person. Jesus, whenever spoke of the Holy Spirit, he always refer as he. हमेशा उसने वह करके बुलाया। ही शब्द जो है ही किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल जॉन चैप्टर 15:26 he says, he shall speak of me. John 16:7 says, I will send him unto you. मैं उसे तुम्हारे पर भेजूंगा। John 16:14 He shall glorify me. It shall नहीं, he shall. He shall not speak of himself. वो अपने आप से नहीं बोलेगा। John 16:13 सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कई लोग इवन क्रिश्चियनिटी में भी कई लोग इसको एक शक्ति के रूप में देखते हैं। सो डोंट ट्रीट हिम एज ए शक्ति। जीसस ने यूहन्ना 14:16 में कहा कि पिता से मैं प्रार्थना करूंगा, वो एक सहायक देगा, कोई वस्तु या चीज नहीं, दैट ही में अबाइड विद यू फॉर एवर। वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए तुम्हारे संग रहेगा। आमीन। सो हम देखेंगे, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखता जाऊंगा और उन पॉइंट के जरिए हम समझते जाएंगे और वो वचन, वो पॉइंट आपको क्लियर करेंगे कि होली स्पिरिट इज ए पर्सन। एक व्यक्ति में क्या क्या बातें हो सकती हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक व्यक्ति हूं, तो मेरी पर्सनालिटी क्या है? मेरी आंख है, मैं देखता हूं, मेरे कान है, मैं सुनता हूं, मेरी जुबान है, होंठ है, मैं बोलता हूं, पांव है, मैं चलता हूं, मूव करता हूं एक जगह से दूसरी जगह, मैं आशीर्वाद के लिए हाथ उठाता हूं, प्रार्थना के लिए हाथ उठाता हूं। ये मेरे बाहरी व्यक्तित्व को दिखाते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तित्व इनसाइड भी है। इनसाइड व्यक्तित्व क्या है? मेरी भावनाएं हैं, मेरी इच्छाएं हैं, मेरा माइंड है, मेरा कॉन्शियस है, मेरा विवेक है। एग्जैक्टली इन द सेम वे होली स्पिरिट है। होली स्पिरिट के अंदर भी ये सारी चीजें हैं। तो जैसे मैं आपसे बात करता हूं या आप अपने घर में परिवार में बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, पिता अपने बच्चों से बात करता है, पति पत्नी आपस में बात करते हैं, एग्जैक्टली इसी तरीके से मुझे पवित्र आत्मा के साथ बातें करना है। पर्सन टू पर्सन ये बात करना ही प्रार्थना है। कोई अलग से लिख कर नहीं देने की आवश्यकता है। अगर लिख कर दे दिया है तो वो फिर प्रार्थना नहीं है। जब आप मुझसे बात करते हैं या आप अपने बच्चों से, दोस्तों से बात करते हैं, तो क्या आप लिख कर लाते हैं और कहते हैं और वो पढ़ते हैं? नहीं, आप अपने दिल से नजदीक में बैठकर बड़े दिल की गहराई से, आत्मा से, माइंड से, अपने इमोशंस, विल को इस्तेमाल करते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर बातचीत करते हैं। इसलिए तो ये बातचीत करना प्रार्थना होता है। इसका साइन पर्सन टू पर्सन टॉक करना, पवित्र आत्मा के साथ उसे मुझे व्यवहार करना है एक व्यक्ति के रूप में। और उस व्यक्ति के पास अकेले में गुटरू करता है, पूछें, बात करें, और थोड़ी देर में अपने एकांत जगह में जाता है, फिर उसको खाने लगता है। आप अगर पत्थर भी उठाएंगे
कस के पवित्र बोल आत्मा देंगे, से बातें करें, तेज आवाज में पवित्र आत्मा कबूतर के उड़ साथ जाएंगे। संगति करें, He is very पवित्र आत्मा के sensitive साथ in nature. सहभागिता करें। इसका मतलब उसकी Communication फीलिंग्स हैं। He can be आपका affected पवित्र आत्मा by के the साथ action of men. आत्मा में होना है। आपके मेरे Amen? व्यवहार के द्वारा वो अफेक्ट हो जाता है। He is very very sensitive. So पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है, पहला पॉइंट हम उसे कैसे चेक कर सकते हैं, आप नोट कर लें। रेसिस्ट द स्पिरिट, यानी आत्मा का विरोध प्रतिरोध नहीं करना है, लेकिन लोग उसका विरोध प्रतिरोध करते हैं ना। हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित कर देना है ना। हमें हठीला नहीं होना है, उसका विरोध नहीं करना है, अर्थात हमें उसकी सुननी है, हम उसे समर्पित करें। अगर मैं उसकी नहीं सुनता हूं, उसको समर्पित नहीं करता हूं, उसकी बात नहीं मानता हूं, उसके सम्मुख झुकता नहीं हूं, मैं जो हूं उसे समर्पित नहीं करता हूं, तो फिर इसका मतलब मैं उसका विरोध करता हूं। सो पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति है और आपका उसे और मेरा उसको विरोध करना अच्छी बात नहीं है। प्रेरितों की पुस्तक अगर आप उसका 7वां अध्याय और उसके 51 वर्ष को पढ़ेंगे, बाइबल वहां कहती है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। तो आप किसी चीज का तो विरोध करते नहीं है, मेज कुर्सी तो है नहीं, किसी व्यक्ति का ही विरोध किया जा सकता है या उसके फेवर किया जा सकता है। तो पहला चीज रेसिस्ट द स्पिरिट। दूसरा क्या है? क्वेंच द स्पिरिट, आत्मा को बुझाना। सो पहला थेसलोनियन 5 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा है, क्वेंच नॉट द स्पिरिट, आत्मा को बुझाओ मत। जब आप उसकी बात को इंकार करते हैं, व्हेन यू रिफ्यूज टू डू व्हाट द होली स्पिरिट सेज टू यू टू डू, जब पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहता है ये करो और आप नहीं करते, तो आप आत्मा को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एटीट्यूड, आपके अंदर जो आत्मा है उसको आप बुझा रहे हैं। ये ऐसा ही होगा जैसे आग है और आप उस पर पानी डालते हैं तो आग बुझने लगती है। तो जब हम आत्मा को बुझाते हैं तो ऐसा क्या होता है, जो फ्लो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का, जो फ्लो है हमारे अंदर से, जो धन्यवाद स्तुति आराधना करने का फ्लो है हमारे अंदर से, वो स्टॉप होने लगता है। सो डोंट स्टॉप द फ्लो ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट वांट टू मूव फ्रॉम यू। प्रभु ने कहा तेरे हृदय के अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। हाउ इट विल फ्लो? जब आप उसे बुझा देंगे तो फ्लो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, ऑटोमेटिकली धीरा हो जाएगा। सो एक व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी है, व्यक्ति में एक ये व्यक्तिगत व्यक्तित्व है उसका, कि आप उसको रिफ्यूज करने की कोशिश ना करें। आप उसके कहने को, जो वो कहता है करो, उसको तुरंत करो। तीसरी बात, बीइंग ए पर्सन ही विल बी ग्रीव द स्पिरिट, आत्मा को शोकित करना। बाइबल कहती है इफिसियों 4:30 में कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट ऑफ गॉड whereby you are sealed unto the day of redemption। छुटकारे के दिन के लिए जो पवित्र आत्मा की छाप आप पर लगी है, इसलिए पवित्र आत्मा को तुम शोकित मत करो। अजीजों, कोई वस्तु या चीज शोकित नहीं होती, एक व्यक्ति शोकित होता है। आप भी अपनी जिंदगी में कभी शोकित हुए होंगे। इंसान शोकित कब होता है? डूइंग समथिंग दैट द होली स्पिरिट डज नॉट वांट फ्रॉम अस टू डू। जब पवित्र आत्मा
हमें कहता है ये मत करो, वो नहीं चाहता कि ये काम तुम करो, और फिर भी हम वो काम करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होने लगता है। फोर्थ पॉइंट, इंसल्ट द स्पिरिट। पवित्र आत्मा का अपमान या बेइज्जती नहीं करनी है। सुन लीजिए ध्यान से, हम लोग जाने अनजाने अपने व्यवहार के द्वारा पवित्र आत्मा की इंसल्ट कर देते हैं। You insult the Holy Spirit by going back into sin. सुन रहे हैं आप? Means you are backsliding yourself. Don't backslide. बाइबल कहती है इब्रानियों 10 अध्याय के 29 पद में, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अगर आपके पाप क्षमा हो गए हैं और फिर दोबारा से आप पाप करने की कोशिश करते हैं, शरीर के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, बैकस्लाइड होते हैं, तो आप पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं। यीशु को, परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंद रहे हैं और वाचा के लहू को जिसके द्वारा आप पवित्र ठहराए गए हैं उसको आप अपवित्र ठहरा रहे हैं। See your attitude. So don't insult the Holy Spirit by going back into sin after you have experienced the forgiveness through the blood of Christ. Bible says in Hebrew 10th chapter verse 29, how much sore punishment suppose you shall be the thought of worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and had counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and had done despite under the Spirit of grace. सोचिए, एक क्षण के लिए सोचिए, क्या आप किसी चीज को या वस्तु को इंसल्ट करते हैं? आई थिंक ऐसा नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो। वी कैन ओनली इंसल्ट ए पर्सन। आप एक व्यक्ति की बेइज्जती कर सकते हैं, उसका अपमान कर सकते हैं, चीजों या वस्तु को नहीं। हैव यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंसल्टेड द पावर, इलेक्ट्रिक पावर? नो, यू कैन ओनली इंसल्ट द पर्सन। यस, यू कैन इंसल्ट ओनली द पर्सन। इब्रानियों 6 अध्याय, अगर आप 4 पद से 6 पद को पढ़ें, वहां पर बाइबल कहती है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। सुन रहे हैं आप? अगर आप पर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है और आपने परमेश्वर की आशीषों का स्वाद चख लिया है, अगर आपने उसकी चिन्ह चमत्कार, उसकी सामर्थ के कामों को देखा है और इतना सब कुछ होने के बाद आप फिर से भटक जाते हैं, तो बाइबल कहती है मन फिराना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाने का काम कर रहे हैं।
जो कि नहीं होना चाहिए। सो अपमान किसका हो रहा है? चीज का या व्यक्ति का? बताइए। चूंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, आप उसकी इंसल्ट कर सकते हैं अपने व्यवहार के द्वारा। अनुग्रह की आत्मा अपमानित हो सकती है। सो चेक योर सेल्फ। बाइबल सेज, Hebrews 6 verse 4 to 6, for it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift and have shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the word of God and the power of the age to come, and then have fallen away, to restore them again to repentance. It is very difficult to go for repentance again and again. एक बार मरना है, हमेशा के लिए मर जाना है। एक बार पश्चाताप किया, रिपेंट किया, तो हमेशा के लिए रिपेंट कर लिया। ऐसा नहीं कि रोज रोज आप रिपेंटेंस में ही जा रहे हैं। रिपेंटेंस से आगे कब बढ़ेंगे? कैसे आप बार बार कहेंगे लॉर्ड रिस्टोर मी अगेन एंड अगेन? डेविड से भी ऐसा हुआ। उसने कहा कि स्थिर आत्मा मुझसे अलग मत कर, अपनी उपस्थिति को मुझसे दूर मत कर, अपनी आत्मा मुझसे अलग न कर। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ये आपके हाथ में है कि आप उसकी इज्जत करें या आप उसको बेइज्जत करें। उसको अपमान मत करें, अपमानित ना करें, बिकॉज ही इज ए पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ब्लेस्फेमी द स्पिरिट, ईश निंदा। ईश निंदा नहीं होनी है। बाइबल कहती है मत्ती 12 अध्याय और उसके 31 और 32 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, थैंक यू होली स्पिरिट। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। सी, कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा होगा। तो ईश निंदा ना करें, निंदापूर्ण व्यवहार ना करें, पीठ पीछे बुराई करना, निंदा करना, नेगेटिव बात को बोलना ठीक नहीं है। बाइबल इसके लिए मना करती है। The word of God says, if you speak the word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him. Neither in this world, neither in the world to come. Do you know? इसका मतलब क्या हुआ आपको मालूम? द सिन ऑफ ब्लेस्फेमी अगेंस्ट द होली स्पिरिट हैज बीन कॉल्ड द अनपैरडनेबल सिन, यानी माफी न मिलने वाला पाप। क्या है? जब आप पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में बोलने लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ, वन सिन फॉर विच देयर इज नो फॉरगिवनेस। एक ऐसा भी पाप है जिसके लिए कोई क्षमा नहीं है। वो क्या है? निंदा करना पवित्र आत्मा की, उसकी कमी निकालना। ब्लेस्फेमी मीन्स टू स्पीक अब्यूसिव वर्ड विच रिजेक्ट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जब आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं तो आप उसकी सामर्थ्य की
निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसकी सामर्थ्य को रिजेक्ट कर रहे हैं। और जब आप उसकी सामर्थ्य को रिजेक्ट करते हैं तो वो व्यक्ति कभी भी उद्धार नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही आपको, पापी मनुष्य को कायल करती है और पापी मनुष्य को मसीह यीशु के पास लाती है। मीन्स पवित्र आत्मा एजेंट का काम करता है टुवर्ड्स द सल्वेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, और आप वो करता है अपनी सामर्थ्य से, और आप उसकी सामर्थ्य को इंकार करते हैं। कैसे? जब आप उसकी निंदा करते हैं। तो इफ ए पर्सन टोटली रिजेक्ट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, देन ही कैन नेवर बी सेव्ड, बिकॉज इट इज द होली स्पिरिट हु ड्रॉज सिंफुल मैन टू जीसस क्राइस्ट। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आप चीजों की निंदा बुराई नहीं करते। घर में रखे सोफा, अलमारी, कंप्यूटर ना, आप व्यक्ति विशेष की निंदा बुराई में चले जाते हैं, जो कि गलत है, जो कि नहीं होनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वेक्स द होली स्पिरिट, VEX, वेक्स द होली स्पिरिट मतलब पवित्र आत्मा को रीस ना दिलाएं, खींच ना दिलाएं, उसे तंग ना करें, उसे गुस्सा ना दिलाएं। वरन कई बार लोग क्या करते हैं, विश्वास ना करके पवित्र आत्मा पर, पवित्र आत्मा के कामों पर विश्वास ना करके, आज्ञा ना मानने के द्वारा, चिंता और कठिनाई उत्पन्न करने के द्वारा, मनमानी करने के द्वारा हम उसको रीस दिलाते हैं, क्रोधित कर देते हैं। ऐसा बाइबल कहती है नहीं होना है। क्यों? ऐसा जो एक व्यक्ति होता है उसके अंदर ये नेचर होता है। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो बहुत जल्दी खींच सकता है। आप उसे तंग करने की कोशिश न करें। अपने व्यवहार को, अपने एटीट्यूड को चेक करें। कई बार हम जाने अनजाने में भी ये गलतियां कर बैठते हैं और उसका खामियाजा फिर हम लंबे समय तक भुगतते हैं। बाइबल कहती है यशाया की पुस्तक उसके 63 अध्याय के 10 पद में, वरन मैं अगर थोड़ा पहले से पढ़ूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा 10वां पद क्यों है। बाइबल कहती है 7 पद से कि जितने उपकार यहोवा ने हम लोगों पर किए, अर्थात इजराइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। क्योंकि उसने कहा निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा नहीं देंगे, और वह उनका उद्धार करता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने अपने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया, प्राचीन काल में से सदा उन्हें लिए फिरा। इतना सब कुछ यहोवा परमेश्वर पिता ने किया। 10वें पद में लिखा है, बजाय इसके कि इन बातों का एहसान माना जाए, आभार व्यक्त किया जाए, रियलाइजेशन हार्ट के साथ आते, ग्रेटफुल और थैंकफुल हार्ट के साथ आते, 10वां पद में लिखा है तो भी इन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वो पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आप उसका आभार व्यक्त करें, धन्यवाद के साथ उसके पास आए, मिन्नत करें, आप उसके कामों की चर्चा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हमेशा अपने आप को उसके अधीन करें, समर्पित भाव में रहें, छोटे बन के रहें, हम्बल बन के रहें। क्यों? क्योंकि वो एक व्यक्ति है। 7वां पॉइंट, लाई टू द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा से झूठ बोलना। आप झूठ किससे बोलते हैं? चीजों से या व्यक्ति से? है ना, इंसान व्यक्ति से ही झूठ बोलता है।
आपको मालूम है सबको अच्छे तरीके से, प्रेरित 5 अध्याय में जब पतरस प्रचार कर रहे थे, मिस्टर एंड मिसेस हनन्या, उन लोगों ने झूठ बोला। और बाइबल में वहां लिखा है, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 5 वर्स 3, पीटर सेड टू अनन्या, Why has Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost? तेरे अंदर शैतान ने क्या भर दिया कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? आगे लिखा है, होली स्पिरिट इज नन अदर देन गॉड। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? एक व्यक्ति है। तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तूने परमेश्वर पवित्र आत्मा जो कि एक व्यक्ति है उससे झूठ बोला? तूने अपने मन में ये बात क्यों विचारी? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोल दिया है। नतीजा आप सब जानते हैं, स्पॉट पे डेथ हो गई, जजमेंट हाथ के हाथ आ गया। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आई थिंक I can't believe this thing कि you could ever lie to a thing, power। आप किसी शक्ति से झूठ नहीं बोलते। I believe you can only lie to a person। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। Treat him like a person। Like a person। Amen? Okay, amen. Amen. Next, point number 8. We can make the Holy Spirit as our enemy। आप परमेश्वर की आत्मा को अपना शत्रु भी बना सकते हैं। तो आपका शत्रु कौन होता है? अगर दुष्ट आत्मा ने आपको अपना शत्रु बनाने की कोशिश की तब भी वो मनुष्य को इस्तेमाल करता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। बट दे रीबेल एंड वेक्सलेस द होली स्पिरिट, देयरफॉर ही वाज टर्न्ड टू बी देयर एनिमी एंड ही फाउट अगेंस्ट देम। आइजाया 63 वर्स 10। बलवा करके और खेदित करके पवित्र आत्मा को शत्रु बना दिया और स्वयं ही पवित्र आत्मा ही वो उनसे लड़ने लगा। आज अगर आपका काम नहीं बन पा रहा, परेशान हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपने पवित्र आत्मा से झूठ बोला हो, खेदित कर दिया हो, बलवा किया हो, और वही जो पवित्र आत्मा आपका दोस्त होना था, आपको फेवर करना था, वो आपका शत्रु बन गया हो और वो आप ही के अगेंस्ट लड़ रहा हो। सो होली स्पिरिट इज ए पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, ही हैज माइंड। पवित्र आत्मा के पास क्या है? माइंड है। अगर आपने इतने दिन से रोज पढ़ ही रहे हैं, आपको याद आ रहा होगा रोमियो की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसके 27 पद में लिखा हुआ है, एंड ही दैट सर्चेस द हार्ट knoweth what is the mind of the Spirit, because he make intercession for the saints according to the will of God। See, will किसमें होती है? A thing does not have a mind। चीजों में दिमाग नहीं होता है। इच्छा किसमें होती है? माइंड किसमें होता है? वो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है। मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। सो होली स्पिरिट हैज द माइंड। आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते।
उसकी बुद्धि अपरंपार है ना। बाइबल कहती है कि उसकी बुद्धि अपरंपार है। कौन उससे सवाल कर सकता है? क्या कोई उससे सवाल कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि की था को किसने जाना? उसकी बुद्धि की था को कोई नहीं जान सकता। ही हैज द माइंड, और माइंड जो होता है वो चीजों में नहीं होता। माइंड किसके पास होता है? जब आप किसी को किसी की बात से तकलीफ पड़ती है तो क्या कहते हैं? अरे डोंट माइंड है ना। माइंड होगा तो माइंड करेंगे ना। तो व्यक्ति में माइंड होता है, चीजों में माइंड नहीं होता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 नोट कर लीजिए। ही स्पीक्स। अब आप मुझे बताइए, चीजें बोलती हैं या व्यक्ति बोलता है? पावर बोलती है या व्यक्ति बोलता है? बोलिए। रोमियो 11 में लिखा है 33, 34, 35 पद आप नोट करना, जहां आपने लिखा था रोमन 8:27, ही हैज माइंड। एक्चुअली जब मैं बोल रहा था तो मेरे सामने एक प्रभु का वचन आ रहा था, और वो एग्जैक्ट वचन सामने नहीं आ रहा था, लेकिन मैं देख रहा था बाइबल में कहां लिखा है। अभी मैंने उसे ढूंढ लिया है। तो आप 9वें पॉइंट में जहां आपने लिखा है होली स्पिरिट हैज माइंड, रोमन 8:27, वहां पर लिख लें रोमन चैप्टर 11 वर्स 33, 34, इवन 35 भी लिख लें। वहां लिखा है कि आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह हैं, उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला वो दे। तो प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? इट मीन्स ही हैज द माइंड, ही हैज द विजडम एंड नॉलेज। उसकी बुद्धि की, उसकी महानता को देखिए। समुंदर को वो एक बालिश से नाप लेता है। कैन यू इमेजिन? जब से उसने पृथ्वी बनाई जेनेसिस की बुक में, आज तक वो वैसे ही है, उसी धुरी पे घूम रही है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का इधर से उधर अगर हो जाए तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा नेचर में। सी ही इज द परफेक्ट बिल्डर, परफेक्ट विजडम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था 10वां पॉइंट, ही स्पीक्स। अगर आप लिखना चाहें तो नोट कर लें, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7, वर्स 11, वर्स 17 एंड वर्स 29। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 6, 13 एंड 22। ये मैंने आपको 7 आयतें लिखी, 7 कलीसियाएं हैं वहां, और बाइबल में लिखा है कि हर कलीसिया में यीशु ने विजिट किया, और सब में कुछ ना कुछ अच्छाई थी, कुछ ना कुछ कमी थी, एक्सेप्ट द लास्ट चर्च। एंड यीशु ने हर चर्च के विजिट के बाद लास्ट में मालूम क्या कहा? जिसके कान हैं वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हेलो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 कलीसियाओं में जाकर यीशु नासरी क्या कहते हैं? बाइबल कहती है, वहां लिखा है कि जिसके कान हैं वो सुन ले,
आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. अब आप मुझे बताएं, चीजें बोलती हैं या व्यक्ति बोलता है? मैं आपको प्रमाणित कर रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं। हाउ होली स्पिरिट इज ए पर्सन। बाइबल कहती है प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय के 29 पद में, वहां पर फिलिपुस का जिक्र है और पवित्र आत्मा फिलिपुस से बात करने लग जाता है। वहां लिखा है, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। वो खोजे रथ के ऊपर जा रहा था और पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को पकड़ा और लिखा है, तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, यानी आत्मा बोलता है। मुस्कुराइए, हम उस प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा प्रभु वो है जो जिंदा है और जो बोलता है। हालेलुया। यहोवा जब धरती पर आया, उसने मूसा से बातें की। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ने बातें की। यीशु मसीह परमेश्वर है, सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। वो जब धरती पे आए तो क्या उन्होंने बातें की या नहीं की? बोलिए बोलिए, बातें की या नहीं की? अगर आप निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय उसका पहला पद पढ़ें, दूसरा पद पढ़ें, 10वां पद पढ़ें, 8वां पद पढ़ें, 7 अध्याय उसका पहला पद, 7 अध्याय उसका 8 पद, उसका 14वां पद, 8वां अध्याय पहला पद, 16वां पद, 20वां पद, 9 अध्याय पहला पद, 8वां पद, 13वां पद, निर्गमन 10 अध्याय पहला पद, 12वां पद, 21वां पद, निर्गमन 11 अध्याय पहला पद, 12 अध्याय पहला पद, 11 अध्याय 9वां पद, 13 अध्याय पहला पद और यहां तक कि 14वां अध्याय पहला पद। 6 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक हर एक स्टार्टिंग वर्ड में वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा। हर एक वचन में आपको मिलेगा, Who is taking the initiative to talk? कौन ले रहा है, कौन बोल रहा है, स्टार्टिंग कौन कर रहा है, इनिशिएटिव कौन ले रहा है, मूसा या परमेश्वर? आप देखेंगे हर जगह लिखा हुआ है। एक्सोडस चैप्टर 6 वर्स 1, लॉर्ड सेड टू मोसेस। 6 to 14 आप देखें, उसका केवल पहला ही वचन पढ़िए, बीच में के बाद वचन ना भी पढ़े, आप पाएंगे कि हर बार लॉर्ड सेज टू मोसेस। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि परमेश्वर हमारा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। बिकॉज ही इज ए पर्सन, दैट्स व्हाई ही इज स्पीकिंग। वो स्पीक करता है, बोलता है, ही स्पीक्स। प्रेरितों 10:19 में पतरस से, जब पतरस कुरनेलियस के घर में जा रहे हैं, वहां उन्हें एक दर्शन हुआ है और बाइबल वहां कहती है 19वें पद के अंदर, पतरस ने जो उस दर्शन पर सोच रहा था कि आत्मा ने उससे कहा। देखा आपने, होली स्पिरिट स्पीक्स। यहां तक कि जब चर्च के अगुए एल्डर्स थे, वर्शिपर इकट्ठे थे, प्रॉफिट्स इकट्ठे थे और वो सब उपवास सहित आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा वहां उपस्थित हो गया। प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद में, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 13 वर्स 2, वहां पर लिखा है कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, हालेलुया।
होली स्पिरिट स्पीक्स, पवित्र आत्मा बोलता है। चूंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, चूंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और व्यक्ति ही बोलता है, मुर्दा नहीं बोलता, चीजें नहीं बोलती, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है। पहला तिमोथी 4 अध्याय 1 पद में लिखा है, आत्मा स्पष्टता से कहता है, ही स्पीक्स वेरी क्लियरली, Holy Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil. इन आयतों से मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और व्यक्ति ही बात करता है। लेकिन आप हो सकता है कहें, यार मेरे से तो कभी पवित्र आत्मा ने बात नहीं की, मैं कैसे समझूं वो पवित्र आत्मा बोल रहा है, कोई और नहीं बोल रहा है। सुनो, होली स्पिरिट he talks to people who listen to him. Only a person can talk. Now you know for sure that the Holy Spirit is a person. That's the reason even today he talks to people. आज भी पवित्र आत्मा बोलता है, लेकिन वो उसी से बात करेगा जो उसकी सुनेगा। अगर आप उसे अनसुना करेंगे, इग्नोर करेंगे, लिफ्ट नहीं देंगे, वो आपको कहता है, आप इधर उधर टावाडोल हो जाते हैं, तो 1-2 बार वो ट्राई करेगा, आपसे बात करेगा, लेकिन जब वो देखेगा कि आप उसकी सुनते ही नहीं हैं, अभी आपको मैं बार बार फोन करूं, बार बार मैं मैसेज भेजूं, व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेजूं, टीचिंग भेजूं, और आप मेरी किसी भी मैसेज का, किसी भी टीचिंग का, मेरे किसी भी मैसेज का और किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करते हैं, तो मेरे मन में क्या आएगा कि यार ये देख भी लिया इन्होंने, पढ़ भी लिया, बात ही नहीं करते हैं। मुझे सच में मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, पैशन वीक टाइम के पहले संडे से मैं टीचिंग भेज रहा हूं लोगों को, वॉइस मैसेज भी भेज रहा हूं, प्रभु का संदेश सुना रहा हूं, 1-1, 1.5 घंटा वचन की बात। और लोग देखते थे, मैसेज को देखते थे, उनके ब्लू साइन आ जाता था कि हाँ इन्होंने देख लिया है, लेकिन कभी भी पलट के रिप्लाई नहीं किया, ये भी नहीं कहा थैंक यू ब्रदर। अच्छा लगा या बुरा लगा तो बात की बात है ये भी नहीं शो करते कि हमने आपका मैसेज देखा, थैंक यू आपने भेज दिया। सो धीरे धीरे मैं लोगों को रिड्यूस करने लगा, और फिर एक टाइम आया जब होली स्पिरिट का स्कूल चलना था, तो मेरे हृदय में प्रभु जी ने डाल दिया, परमेश्वर का वचन अनमोल मोती है, ऐसे ही तू हर एक के सामने मत दे। जो आदमी उसकी कदर ही नहीं कर रहा, कोई उसकी वैल्यू नहीं दे रहा, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, सो व्हाट यू डू, यू कॉल पीपुल, सेंड मैसेज टू एवरीवन कि होली स्पिरिट का स्कूल स्टार्ट होने जा रहा है, जो रजिस्टर्ड करा लेगा, रजिस्ट्रेशन जबकि फ्री है, फ्री में मिल रहा है, तब भी लोग रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं समझी लोगों ने, कि चलो हम नहीं भी पढ़ेंगे, जब टाइम होगा पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। लोग सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है, फ्री रजिस्ट्रेशन कराने को तैयार नहीं हुए, जबकि 3-4 बार मैंने रिमाइंडर भेजा। ये क्रिश्चियनों को भेजा है, अन्य जातियों को नहीं मेरे अजीजों। और हम दम भरते अन्य जातियों की, यार हमारी अन्य जाति सुन नहीं रहे, अन्य जाति में प्रचार करेंगे। अरे जाति भाई में भी तो प्रचार करेंगे। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अन्य जाति को जब मैं प्रभु का वचन सुनाऊं तो वो मेरी सुने और मान ले, और जो जाति भाई हैं, जो ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, जो ऑलरेडी चर्च मेंबर हैं, बिलीवर हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अरे भाई रजिस्ट्रेशन करा लो, होली स्पिरिट पे शिक्षा होगी, आप लोग भी सुन लेना। लेकिन हम क्यों सुने? ये एसके पुरी कौन होता है कहने वाला? एक गांव का लड़का, इस पे तो कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, किसने इसे अपॉइंट किया है?
दसियों क्वेश्चन, सुनने को लोग तैयार नहीं है। तो आज भी पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा किसी ना किसी माउथ को इस्तेमाल करेगा, किसी ना किसी की जुबान को इस्तेमाल करेगा। जैसे यीशु मसीह को आपका हृदय चाहिए, वैसे ही पवित्र आत्मा को आपकी जुबान चाहिए। He wants your tongue. As you have dedicated your heart to the Jesus Christ at the time of the salvation, and now when you want to grow in the Christ, you have to dedicate your tongue to the Holy Spirit. केवल आप अपनी जुबान उसे समर्पित कर दें। अगर ये मुट्ठी भर इंडिया के जो क्रिश्चियन हैं राइट वचन सुनने लग जाएं, राइट स्पीकिंग शुरू कर दें, तो बहुत जल्दी इंडिया क्रिश्चियन कंट्री बन जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू। मैं कहना ये चीज चाह रहा हूं केवल कि पवित्र आत्मा बोलता है, अरे उसकी सुनो यार। आमीन। ओके, 11th पॉइंट, 11वां पॉइंट, होली स्पिरिट गिव्स द काउंसल। होली स्पिरिट गिव्स द काउंसल। Nehemiah chapter 20. Thou gavest also the good spirit to instruct them. देखा, वो इंस्ट्रक्ट करता है। काउंसलिंग करना मतलब सलाह देना, समझाना। आजकल कई लोग काउंसलिंग मिनिस्ट्री करते हैं, आपकी बातें सुनेंगे, फिर आपको सलाह देंगे और आपको समझाएंगे। तो पवित्र आत्मा का एक कार्य क्या है? वो समझाने का काम करता है, सलाह देने का काम करता है। नेहमिया 9:20 में लिखा है, तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया। कोई वस्तु या चीज आपको सलाह नहीं दे सकती, समझा नहीं सकती, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि तूने उन्हें समझाने के लिए अपनी आत्मा को जो भला है, यानी प्रभु की आत्मा भली आत्मा है, एक्सीलेंट स्पिरिट। डैनियल 6 में लिखा है, ए स्पिरिट ऑफ गॉड इज एक्सीलेंट स्पिरिट, वो भली आत्मा है ना। पर्सन कैन गिव द काउंसल, नॉट एवरीबडी, कि हर व्यक्ति आपकी काउंसलिंग कर देगा, ऐसा नहीं है। हर चीज आपकी काउंसलिंग कर दे, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा वो आपको समझाता है, परमेश्वर का आत्मा आपको सलाह देता है। हालेलुया। अगर आप नेहमिया की पुस्तक उसके 9वें अध्याय और उसके 17 पद से पढ़ेंगे तो देखिए प्रभु के लोगों ने प्रभु के साथ क्या किया और तब प्रभु ने क्या कहा। वहां लिखा है, आज्ञा मानने से इनकार किया। जब आप आज्ञा नहीं मानते हैं, मनमानी कर रहे होते हैं, और जो आश्चर्यक्रम तूने उनके बीच में किए उसको स्मरण न किया, वरन हट करके यहां तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान जो ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको न त्यागा, वरन जब उन्होंने बछड़ा ढालकर, है ना, आप समझ रहे हैं, हारून के द्वारा उन्होंने परमेश्वर ले लिया। क्या वरन जब उन्होंने बछड़ा ढालकर कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया वो यही है बछड़ा, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तो भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उनसे हटाया, और न रात को उजियाला देने वाला, उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा हटाया। मतलब आप लोग विरोध कर रहे थे, फिर भी प्रभु ने अपनी उपस्थिति को उनसे अलग नहीं किया। 20वें पद में तब लिखा है, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपनी आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना नहीं छोड़ा, उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी देता रहा। मतलब स्टिल दैट गॉड इज डूइंग ऑल द थिंग विद देम, और अपनी आत्मा दी ताकि वो उसे समझाए। तो समझाने का काम कौन कर सकता है अजीजों? वही करेगा जो व्यक्ति होगा।
person can give counsels. And the last point, 12th point, he has a will. आत्मा के पास अपनी इच्छा होती है, विल पावर. 1 Corinthians 12th chapter 11 verse. But all these worketh that one and the self same Spirit, dividing to every man severally as he will. The will of the Holy Spirit guides believer. It is the Holy Spirit who decide what kind of spiritual gifts. जो आत्मिक वरदान है किसको क्या देना है, ये निर्धारित कौन करेगा? ये पवित्र आत्मा की इच्छा है. The Holy Spirit has shown His will in setting apart people for the Lord's service. Acts chapter 13 verse 2. मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं, सारे जो गिफ्ट्स हैं आत्मा के, जो प्रभावशाली कार्य हैं, वही एक आत्मा कराता है. करने वाला तो एक ही है, एक ही आत्मा, दैट इज होली स्पिरिट. लेकिन जिसे वो जो चाहता है वो उसे बांट देता है. जरूरी नहीं है कि 9 के 9 गिफ्ट पवित्र आत्मा आपके द्वारा क्रियाशील कराए. इट इज देयर. लेकिन पवित्र आत्मा किसी पर्टिकुलर गिफ्ट में आपको मूव कराए, ये उसकी इच्छा है. किसी को चंगाई का वरदान दिया, किसी को पढ़ाने का दिया, किसी को सिखाने का दिया, किसी को सामर्थ्य के काम करने का दिया, किसी को वार्तालाप के दान दे दिए, कम्युनिकेशन गिफ्ट दे दिया. सो मैं कहना ये चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के पास विल है. जिसके पास विल है वही तो आपको विल दे सकता है. इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता समरूपता में रचा. तो जिसके पास आंख है वही तो आंख दे पाएगा. आप देखिए परमेश्वर का व्यक्तित्व कैसा है. उसके पास आंख है, वो देखता है. बाइबल कहती है वो देखता है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो चलता है, वो मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, वो टच करता है. इसका मतलब हाथ है. वो मूसा के सामने से पीछ करके निकल गया, इसका मतलब उसकी पीछ है. उसकी मन भावना इच्छाएं हैं. उसने कहा मैंने अपने कौम के लोगों की पुकार पर चित्त लगाया है. उनकी रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज मेरे कान तक पहुंची है. He has the ears. यीशु जब थे धरती पे, उन्होंने खुद कहा गethsemane बाग में, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मैं उदास हो गया हूं. आप देखिए उसके अंदर ये भावनाएं हैं. इसी प्रकार पवित्र आत्मा है. पवित्र आत्मा सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ बोलता है, वो टच भी करता है. आप प्रार्थना में लोग सेवक कहते हैं ना, टच होली स्पिरिट. व्हाई दे आर सेइंग दिस थिंग देन? कोई माइक थोड़ी जाएगा टच करने, या पुलपिट जाएगा, चीजें थोड़ी टच करेंगी. आप बिलीव कर रहे हैं अनसीन गॉड होली स्पिरिट पे, कि अदृश्य परमेश्वर पवित्र आत्मा त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति टच करेगा जब मैं कहूंगा होली स्पिरिट टच. आप हाथ रखते हैं, पवित्र आत्मा आपके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है, आपके हाथ के अंदर से सामर्थ्य की किरणें निकलने लगती हैं. हबक्कुक 3:4 में लिखा है. रेज ऑफ पावर आपके अंदर से फ्लो होगी. आपका हृदय है, उसका भी हृदय है. आपके पास इमोशन है, उसके पास भी है. उसके पास है तभी तो उसने आपको इमोशन दिया. तो आप एक व्यक्ति हैं. जैसे आप एक व्यक्ति हैं वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है. दिस शोज ही इज ए पर्सन. सो चेक योर एटीट्यूड. आप अपना एटीट्यूड चेक करें, अपना व्यवहार चेक करें, अपने एक्शन चेक करें. हाउ यू आर बिहेविंग विद द होली स्पिरिट. आपके एक्शन से, आपके बिहेव से, आपके एटीट्यूड से वो शोकित हो सकता है, वो दुखी हो सकता है. आप अपने व्यवहार से अपना दुश्मन उसे बना सकते हैं जबकि वो आपका सहायक है. आप अपने एटीट्यूड व्यवहार से आप उसको बेइज्जत कर सकते हैं, इंसल्ट कर सकते हैं, आप उसकी निंदा कर सकते हैं. इट ऑल डिपेंड अपॉन यू, हाउ यू आर बिहेविंग. क्या आप उससे झूठ बोलते हैं?
क्या उसको गुस्सा दिलाते हैं, तंग कर रहे हैं, खीस दिला रहे हैं, रीस दिलाते हैं? बाइबल कहती है बच्चों अपने माँ बाप को रीस मत दिलाओ। जब आप कहना नहीं मानते, मनमानी करते हैं, तो वो दुखी होता है, खींच उठता है, उसे गुस्सा आता है, वो बोलता है। आप बोलेंगे तो वो बोलेगा, अब वो जब बोलेगा आप सुनेंगे तो वो बार बार बोलेगा। इस प्रकार से हम अपने आप को पवित्र आत्मा के नजदीक भी ला सकते हैं, उसके करीब आ सकते हैं, उसके साथ डीप क्लोजनेस में आ सकते हैं, उसके इशारे को समझ सकते हैं, उसकी धीमी आवाज को सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ व्यक्ति वाला व्यवहार होना है। वो कोई पत्थर की मूर्त नहीं है, वो आपका कल्पना से बनाया हुआ यीशु मसीह का चित्र बना के लोगों ने घर में टांग लिया है। बोले यीशु मसीह अब आप यहां टंगे रहो, हम अपना घूमे फिरेंगे। दैट इज रॉन्ग। प्रभु तो आत्मा है, बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 17 पद में, प्रभु तो आत्मा है। यूहन्ना 4:23-24 कहता है पवित्र आत्मा तो आत्मा है, अनसीन गॉड है। आपको विश्वास करना है, वो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है। इब्रू 11:6 में लिखा है। तो जब मैं इस विश्वास के साथ आता हूं, तो जब आप प्रार्थना करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपके अंदर ये भाव होना है कि वो मेरी सुन रहा है। जब आप किसी दूसरे को के लिए सेवकाई करते हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस टाइम आपका सारा कॉन्शियस इनसाइड होना है कि होली स्पिरिट मेरे अंदर है और वो ऐसा कर रहा है। अभी मैं कल बाहर किसी जगह पर था, पता नहीं कहां से किसी ने मुझे फोन किया और उसने कहा ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे मसूड़ों में बहुत दर्द कर रहा है, मेरा दांत बहुत तकलीफ कर रहा है। उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट करने का अंदाज से मैं मूव हो गया, मुझे मेरे अंदर तरस आ गया और मैं पूरी आत्मा से भरकर मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगा। मेरी आंख बंद थी, मैंने अपना हाथ वहां से बढ़ाया, करीब 150 किलोमीटर दूर मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं मैं कि अपने अंदर से होली स्पिरिट को मैं रिलीज कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मैं उस दर्द को डांट रहा हूं। आधे घंटे के बाद उसका फिर मिस कॉल आना शुरू हुआ। फिर मैंने उसे देखा, मैंने क्या हो गया? बोले ब्रदर चमत्कार हो गया, मेरा तो दर्द गायब हो गया है। सी ये इस क्लोजनेस में आप बढ़ जाएंगे, व्यक्ति से व्यक्ति के रूप में। सुबह उठते ही, इससे पहले कि आप अपने घर के लोगों को, अपने बच्चे, अपने पति पत्नी को गुड मॉर्निंग करें, सुबह उठते ही आपके मुख का पहला शब्द होली स्पिरिट के लिए निकले, होली स्पिरिट गुड मॉर्निंग। रात को सोने से पहले उससे बात करके सोएं। मैं कल का गया हुआ, परसों का गया हुआ, कल रात को घर आया, थका हारा था, इतना थका था और गाड़ी भी मुझे खुद चलानी थी, अकेला, सारे काम इधर उधर कुछ थे, जरूरी जाना जरूरी था। और जब मैं आया, मैं इतना थका हुआ था, मैंने वाइफ से कहा मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, जस्ट मैं रिलैक्स लेटा रहा, लेटे लेटे प्रभु से बातें करता रहा। रात को उठ उठ के प्रार्थना करता रहा, बिस्तर पर ही घुटने टेकता, प्रार्थना करता, घुटने टेकता, प्रार्थना करता, फिर लेट जाता। और फाइनली होली स्पिरिट ने मुझसे कहा चलो तुम सो नहीं रहे तो उठ के बैठो, कल मैसेज देना है। तैयारी की कुछ? अरे मैंने कहा प्रभु जी क्या बोलना है, बताइए बताइए। मैं प्रभु जी से बात करने लगा एंड गॉड गिव मी दिस टाइटल। प्रभु ने कहा टेल देम कि होली स्पिरिट इज ए पर्सन, दे मस्ट बिहेव लाइक ए पर्सन। आई एम ए पर्सन, दे आर पर्सन, पर्सन टू पर्सन कनेक्शन। और ये इंपॉर्टेंट है और ये जल्दी जल्दी उन्हें सिखा, क्योंकि इसके बाद फिर उन्हें प्रार्थना करना सिखा कि एक प्रार्थना कैसे करनी होती है, पवित्र आत्मा से बातचीत कैसे करनी है, ताकि जितने दिन बाकी बचते हैं ये लोग आत्मा में प्रार्थना करना सीख जाएं। आत्मा में। ये लोग अभी तक फ्लैश में प्रार्थना करते हैं, कई लोग माइंड से प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनकी फ्लैश और माइंड की प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। जब ये आत्मा में प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना मैं सुनता हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं, आत्मा से आत्मा की प्रार्थना। ये बातें कब सीखेंगे? जब उन्हें ये पता होगा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ व्यक्ति जैसा व्यवहार करना है। उसे गले लगाएं, उससे हाथ मिलाएं, उसके चरणों से लिपट जाएं,
कोई भी काम करें पवित्र आत्मा से बात करके करें, पूछ के करें। यहां तक कि मैं अपनी बात बताऊं, मुझे कपड़ा भी पहनना होता तो मैं पूछता हूं होली स्पिरिट में कौन सी ड्रेस पहनूं, क्या खाना चाहते हैं आप, क्या खाएंगे, जाना है किस रूट से जाऊं, नहीं जाऊं, यह सारी बातें, अच्छी बुरी बात सब आप उससे करें। मैं आपको बता रहा हूं वो सुनता है, वो दूर नहीं है, वो तीसरे स्वर्ग में नहीं बैठा है, वो आपके अंदर बैठा है। लेकिन आपकी अप्रोच कैसी होनी है, ठीक है। सो अपने बिहेव से उसको डिस्टर्ब ना करें, शोकित ना करें। आपकी हर परिस्थिति पर उसकी नजर है, वो जानता है आप किस दौर से गुजर रहे हैं, वो जानता है आपकी कष्ट क्या है, वो जानता है कितने साल से आप उसी चक्कर में लगे हुए हैं और आप छुटकारा नहीं पा रहे। सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन एवरी डे। आप चाहते हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, जो आता है आपको अपनी शिक्षा दे जाता है 10 लोग आपसे मिले, 10 लोगों के आपने संदेश सुने, 10 तरीके के विचार आप में घूम रहे हैं और कर एक भी नहीं रहे हैं, रिजल्ट किसी का नहीं आ रहा। कब मैच्योर होंगे, कब अपने पांव पर खड़े होंगे? पप्पा चाहता है कि तुम लोग अपने पैरों पे खड़े हो, समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना है। सो आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलें और इस टीचिंग को यहीं मैं क्लोज करता हूं और होली स्पिरिट से बात करें। मैं चाहता हूं 2 मिनट हम सब बातें करें, उसको व्यक्तित्व को देखें, उसके व्यक्तित्व को देखें, उसकी पर्सनालिटी को देखें, उसको देखें एज ए पर्सन और कहें होली स्पिरिट आई लव यू, थैंक यू होली स्पिरिट फॉर टुडेज टीचिंग, यू आर पर्सन, a great person, real person, more real than me. Oh, Holy Spirit, from today onward, I will treat you as a person. You have emotion, you have will, you have desires. You hear, you see, you have the heart. Knowingly, unknowingly, many times I grieve you, Holy Spirit. I quench you. I try to quench you. Forgive all this, Lord. अब मैं नए सिरे से तेरे पास आता हूं। पवित्र आत्मा, बीते सालों में, बीते दिनों में मैंने कई बार तुझे शोकित किया। जो तूने कहा मत कर, मैंने वही कर दिया। कई बार मैंने तुझे बुझाने की कोशिश की, तूने कहा ये कर, मैंने नहीं किया। मैं आलस में पड़ गया, मैंने अपनी मनमानी की, मैंने टाइम की कदर नहीं की। जीवित वचन तूने मुझे दिया, मैंने इग्नोर किया। टॉक टू हिम, ही इज स्टैंडिंग बिफोर यू। आज पवित्र आत्मा ने तुम पर छाया की हुई है, वो आपके दिल के विचारों को जान रहा है, सुन रहा है। आप उससे कहें पवित्र आत्मा, जहां कहीं रिपेयर की जरूरत है मुझे रिपेयर कर, जहां छैनी हथौड़ा चलाने की जरूरत है छैनी हथौड़ा चला, जहां छड़ी चलाने की जरूरत है मुझ पर छड़ी चला। मेरी रिपेयर कर, रीबिल्ड कर, रिन्यू कर। यस होली स्पिरिट, रिवील कर, रिक्रिएट कर, रिकंस्ट्रक्ट कर, रिस्टोर कर। जो कुछ तू करना चाहता है मैं अपने आप को तुझे देता हूं। और आज से मेरा तेरा रिश्ता बढ़ने लगे, दोस्ताना व्यवहार मेरा तेरा हो जाए। यस होली स्पिरिट, मैं और तू और मैं एक हो जाएं। एक होकर जहां भी मैं जाऊं तुझे प्रकट करूं, तुझे रिवील करूं, तुझे रिप्रेजेंट करूं, तुझे रिफ्लेक्ट करूं। जब लोग मुझसे बात करें, मेरे मुख से तेरी बातें निकलें, मुझे देखें, उनको वो लोग मेरे अंदर तुझे देखने पाए। चाहे हम दूर हैं तो क्या हुआ प्रभु जी, फिर भी प्रभु जी आपकी उपस्थिति आए प्रभु जी। लॉर्ड आई वांट टू नो यू मोर, मोर एंड मोर लॉर्ड। गिव मी द न्यू बिगिनिंग लॉर्ड। मुझे एक नई शुरुआत दीजिए प्रभु जी।
बीते दिनों में मैंने अपनी मनमानी की है, हठीलापन किया है, अपने हृदय को कठोर कर लिया, मनुष्य की बनाई हुई विधियों को धर्म उपदेश करके मान लिया, अपने ही बनाए हुए नियम कानून में बंध गया। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू बी फ्री इन यू, मेक मी फ्री जीसस। प्रभु तो आत्मा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। थैंक यू फॉर योर रिडेम्पशन, थैंक यू फॉर योर फ्रीडम। आई एम टोटली फ्री नाउ because the Spirit of the Lord is with me, in me and upon me. Today I came to know you. Holy Spirit, you are a person, third person of Trinity. You are a wonderful person. You are a true person. You are a gracious person. Yes, Lord. मेरी परिस्थितियां बदल जाएं तेरी उपस्थिति से। संकट की घड़ी में जब पुकारूं मैं तुझे। आइए हम सब मिलकर वर्शिप के एटीट्यूड में बड़ी नम्रता और दीनता के साथ उसको महसूस करते हुए, अगर आप अपने घुटने के बल आ सकते हैं तो घुटने के बल आ जाएं, अगर आप बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। जस्ट समर्पण के भाव में मेरे साथ उसकी आराधना करें और उससे कहें, संकट की घड़ी में जब पुकारूं मैं तुझे, मुझ पर अपनी करुणा बरसा। हे परमेश्वर, मुझे कभी अकेला मत छोड़। हो उपस्थित हरदम मेरे साथ। फिर से संकट की घड़ी में जब पुकारूं मैं तुझे, मुझे पर अपनी करुणा बरसा। हे परमेश्वर, मुझे कभी अकेला मत छोड़। उपस्थित हरदम मेरे साथ। स्वर्ग की ओर तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की ओर सब मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। और ला 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 बशंदरी डाले निवे शिखरलना हंदरी दलना बारी बला रबनबा कोरलना हंदरे दिली निबी शिबुरुदुलो नना बशिंदरे दिली निबी री 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 वे 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 शानदार रब्रारी कलावा शिखरोदलो हंदरे रिधरी ब्रेरी क्लबा खेरे बेले नवा शानदारी दले नहंदरो रो बार रब्रारी क्लबा रवे नहंदरे दिले नवा शाखीरी दलहा खुबुरुदुलुबा। Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you, Holy Spirit.
Thank you, thank you. I love you, Holy Spirit. I love you, love you, love you. I praise you. Oh, I worship you, Holy Spirit. I worship you. Thank you being with me. Thank you in me. Thank you, you are upon me, Holy Spirit. Thank you for this school of Holy Spirit. Lord, I pray for all the 45 students, Lord. I release your anointing upon them, Holy Spirit. Thank you, you are shadowing upon them. Thank you, Lord. This is your batch, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, this batch belongs to you, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, you are preparing them, you are teaching them. Thank you, Lord. Lord, I know your eyes is upon every individual. Thank you, you are speaking to everyone individually, Lord. Lord, I thank you, your presence upon each and everyone. I bless this batch, Lord. I bless all the 45 students, Lord. Lord, make it easy, everyone to him, that they will understand, Lord, what you are saying. Holy Spirit, thank you for imparting your presence. Thank you, you are imparting your revelation of the word of God. Thank you, Holy Spirit, you are molding them, you are making them, you are preparing them. Thank you, Lord. Lord, I thank you, Lord, I thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much, Holy Spirit. Very humbly, I dedicate this batch into your authority, under your mighty hand, so that they will exalt in due time. Thank you, Holy Ghost. In Jesus' precious and mighty name I pray. Amen. Say Amen. With a smile, say Amen. Just say, Holy Spirit, thank you. Okay. आप लोगों ने रोमन 8 पढ़ लिया होगा. भोर को तड़के उठे होंगे, मैं विश्वास करता हूं. जितने बजे उठना चाहते हैं, रात को सोते वक्त होली स्पिरिट से कह दें, प्रभु जी मुझे सवेरे इतने बजे उठा देना, वो उठा देगा. मैंने आपको कल शाम से प्रेयर पर टीचिंग भेजना शुरू किया है, शॉर्ट टीचिंग. कुछ दिन में प्रेयर से रिलेटेड ये टीचिंग भेजूंगा, है ना. 1-2 दिन के बाद अर्ली मॉर्निंग टीचिंग भेजूंगा. अभी मैंने जस्ट प्रेयर के बारे में भेजा कल, आज भी भेजूंगा. आई थिंक 5-6 दिन में आपको भेजूंगा. और उसके बाद हम लोग कैसे प्रार्थना करेंगे, आत्मा से कैसे बात करेंगे, इस टॉपिक पे आ जाएंगे. और जब वो चीजें हमें मिल जाएंगी, सीख जाएंगे, तो हम लोग अपना थोड़ा समय रोज बढ़ाएंगे. शुरू में हम 5 मिनट प्रार्थना करेंगे, फिर अगले दिन 10 मिनट, फिर अगले दिन 15 मिनट, ऐसे 5 मिनट हम लोग बढ़ाएंगे. प्रैक्टिकल होगा. आप अपना प्रैक्टिकल घर में करेंगे, मैं अपना करूंगा. हम स्टार्ट एक पहली बार मैं करूंगा, आप मेरे साथ भी ज्वाइन हो जाएं शुरू में. और इस तरीके से हम लोग आत्मा में प्रार्थना करना प्रारंभ करेंगे और सीखेंगे. फिर जिस दिन जब हम ये सीख जाएंगे, तो एवरी डे जब क्लास स्टार्ट होगी, हम 5 मिनट आत्मा में प्रार्थना करेंगे. आप देखेंगे इससे क्या होगा कि आप और अच्छे से सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे, और नजदीकी को अनुभव करेंगे, है ना. फिर मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. मैं तो केवल बता रहा हूं, सिखाएगा समझाएगा पवित्र आत्मा, है ना. तो आपने उसी से बात करनी है, उसी को खुश रखना है. कोई ऐसी बात ना करना, कोई ऐसी हरकत मत कर देना जिससे कि वो शोकित हो जाए, है ना. अब आपको एक नई शुरुआत मिल गई है, आप इसमें आगे बढ़ें. होली स्पिरिट आपके साथ है. आमीन. आज का जो होमवर्क है, साम 139 वर्स 7, भजन संहिता और उसका 139वां पद, 139 वर्स 7. मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं. वो हर जगह मौजूद है, तो आप कहां जाएं.
जहां जाएंगे वो आपको मिल जाएगा। इजी हो गया है। कल मैंने बताया था होली स्पिरिट का सिम आपके अंदर है, अब वो आपके पीछे नहीं जा रहा है। आप जहां जाएंगे वो ऑटोमेटिक आपके संग जा रहा है। सी द डिफरेंस। पुराने नियम में क्या था कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो पीछे, जहां आप जाते हैं पीछे पीछे आपके चल रहा है, आगे आगे आपके चल रहा है। सवेरा हो गया तो बादल का खंबा बन गया, रात हो गई आग का खंबा बन गया, बट जहां आप जाएंगे आपके साथ जा रहा है। अब क्या हो रहा है, अब वो आपको फॉलो नहीं कर रहा, आपके पीछे नहीं आ रहा है, अब वो आपके अंदर है ऑलरेडी। तो जहां आप जा रहे हैं वो ऑटोमेटिक जा रहा है। तो अब आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु जी धन्यवाद हो, मैं अपना सफर शुरू कर रहा हूं, प्रभु जी मैं जा रहा हूं, प्रभु आइए मेरे साथ चलिए, आपकी उपस्थिति मेरे साथ साथ चले। अब आपको ये प्रार्थना नहीं करनी है। आपको कहना है थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट, यू आर विद मी, थैंक यू फॉर कमिंग विद मी। हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कई बार मैं ऐसे प्रार्थना करता हूं, होली स्पिरिट मैं थक रहा हूं, आप ड्राइव करो, मैं बैठा हूं। ई ड्राइव, वो आपके अंदर है, वो आपकी फेलोशिप का एंजॉय करना चाहता है, आपकी उपस्थिति आपकी संगति का आनंद लेना चाहता है। वो आपकी उपस्थिति का आनंद लेगा, आप उसकी उपस्थिति का आनंद लें। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात को? प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी प्रार्थना धन्यवाद में कन्वर्ट हो जाएगी, आपका प्रेयर रूम थैंक्स गिविंग रूम बन जाएगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। अच्छे से नाश्ता वास्ता कर लीजिए। मैंने भी रात से कुछ नहीं खाया है, मैं भी जाके नाश्ता करूंगा। ओके, बाय बाय।